Now I'm talking about restriction enzymes or restriction endonuclease. These are the most important tools in genetic engineering and are often referred to as biological or molecular scissors. The restriction enzyme cut the DNA by cleavage at a specific site in either blunt and style or sticky end style. Restriction enzyme belong to a class of enzyme called nucleases. Nucleases are of two types, exonuclease and endonuclease. Exonuclease remove nucleotide from the end of the DNA, either 5' or 3' in one strand of duplex, and endonuclease may cut at a specific position within the DNA. These specific sequences are recognition sequence. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Palindrome in DNA is a sequence of base pair that reads same on the true strand when orientation of a reading is kept same. तो जिस तरह से हम डालडा को पढ़ते हैं तो उल्टा सीधा डालडा ही पढ़ा जाएगा, ऐसे मलयालम को आप उल्टी साइड से भी पढ़ेंगे तो मलयालम ही पढ़ा जाएगा, और जैसे उर्दू में पढ़ते हैं ऐसे ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए का वो सीक्वेंस होता है जिसे हम आगे से रीड करें या पीछे से रीड करें सेम ही सीक्वेंस रीड होता है. For example, sequence read the same on the two strand in 5' to 3' direction as well as 3' to 5' direction is 5' GAATTC 3', और इसको अगर हम उल्टी साइड से पढ़ेंगे तो 5' GAATTC 3', ऐसे ही पढ़ा जाएगा, दोनों तरफ से सेम सीक्वेंस. Now I'm talking about naming of restriction endonuclease. The restriction enzyme are named with the first letter from the genus and first two letter of the species from which they are isolated. Example, EcoR1 comes from Escherichia, from gene name, coli, CO from species name, RY13. The letter R is name of strain and the Roman number indicate the order in which enzyme were isolated. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग कैसे की जाती है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उनका नेम फर्स्ट लेटर जीनस का लिया जाता है और फर्स्ट दो लेटर जो है स्पीशीज़ के लिए जाते हैं जिस स्पीशीज़ से उसे आइसोलेट किया गया है, सेपरेट किया गया है. एग्जाम्पल, EcoR1 में ई जो है एस्केरिशिया कोलाई है जो जीनस नेम है, और कोलाई में CO जो है वो स्पीशीज़ नेम है. RY13 में लेटर R जो है वो स्ट्रेन का वैरायटी का नेम है, और रोमन नंबर 1 इंडिकेट करता है कि एंजाइम जो है वो फर्स्ट नंबर का आइसोलेट किया गया है, सेपरेट किया गया है. Now I'm talking about action of restriction enzyme. Blunt end. In this type, cuts are produced across both strands of DNA, thus producing double-stranded DNA molecule having both strands of the same length. In such type cleavage, both strands terminate in a base pair. तो ब्लंट एंड वाला जो टाइप होता है इसमें कट जो है वो अक्रॉस द बोथ स्ट्रैंड लगाए जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड में लगाया जाता है. इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो है वो सेम लेंथ के दो अलग हो जाते हैं. और स्टिकी एंड की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्टैगर्ड कट ऑन द डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम in which the terminal portion have a stretch of unpaired nucleotide and the strand are not of the same length. तो सेम लेंथ के स्ट्रैंड इसमें नहीं बनते जब स्टिकी एंड होता है. The end of the DNA obtained are sticky because it has the ability to match up with a complementary cleave overhang, that is stretch of unpaired nucleotide in the end of a DNA molecule. It is also called as a cohesive end. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जो स्टिकी एंड वाला होता है उसमें जो बीच में से सीक्वेंस टूटता है तो वहाँ पर कोई दूसरा फिट हो पाए, ऐसे सीक्वेंस से उसकी बेस पेयरिंग होकर अटैच होता है, ताकि बीच में जिस तरह से वो ब्लॉक्स को हम जोड़ते थे बचपन में जब हम खेलते थे ब्लॉक्स वाले खिलौने, तो उसमें ब्लॉक्स को एक से दूसरे से फिट किया जा सकता है. ऐसे ही यहाँ पे डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं तो उनके सामने जिसकी बेस पेयरिंग होगी वैसा ही स्ट्रैंड लाकर उससे जोड़ा जा सकता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए लाइगेज. These enzymes repair broken DNA by joining two nucleotides in a DNA strand. It is used in recombinant DNA technology to join complementary restriction fragment, that is reverse of restriction endonuclease. तो ये एंजाइम रिपेयर करता है टूटे हुए डीएनए को और ज्वाइन करता है दो न्यूक्लियोटाइड को डीएनए स्ट्रैंड में.
तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये ज्वाइन करने में यूज़ होता है कॉम्प्लीमेंट्री रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स को। नेक्स्ट वन इज लाइएजेस, दीज आर द एंजाइम यूज टू ओपन द सेल और डिजोल्व द सेल वॉल। तो सेल को ओपन करने में और सेल वॉल को डाइजेस्ट करने में, डिजोल्व करने में लाइएजेस एंजाइम यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंथेटेजेस, इट हेल्प्स इन आइदर इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए और इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एग्जाम्पल डीएनए पॉलीमरेज। तो सिंथेटेज एंजाइम जो है वो या तो डीएनए की इन विट्रो यानी इन टेस्ट ट्यूब में सिंथेसिस करने में यूज़ होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने में यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोनिंग वैक्टर्स। These are also known as DNA vehicles and can be defined as the DNA molecule capable of self-replicating and are used as a carrier of DNA segment to be cloned. तो इनको हम DNA vehicles के नाम से भी जानते हैं। DNA मॉलिक्यूल जो कैपेबल होता है अपने आप रेप्लिकेट करने में और इसे कैरियर ऑफ DNA सेगमेंट जिसका क्लोनिंग करना है उसकी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो what are the features of cloning vector? A good vector must have the following characteristic features. Number 1, ORI, origin of replication. It is the sequence from where the replication start and any piece of DNA when linked to sequence can be made to replicate within the host cell. तो ORI, origin of replication, वो जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन डीएनए का स्टार्ट होता है। जैसे छोटी हम लोग जहाँ से करना स्टार्ट करते हैं तो उस पॉइंट से, वैसे यहाँ पे ORI में वो पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन डीएनए अपने को डबल करना स्टार्ट करता है उसे बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर में। सेकेंड, अ वेक्टर शुड हैव अ यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, दिस साइट वुड बी रिकग्नाइज्ड बाय कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वेक्टर में एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए और जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान पाए। थर्ड वन, अ मार्कर जीन और सिलेक्टेबल मार्कर टू परमिट द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। और नेक्स्ट है हाई कॉपी नंबर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर रेप्लिकेट, तो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल कॉपी बन पाएँ तो ऐसा वेक्टर यूज़ करना चाहिए जिसका हाई कॉपी नंबर हो, मतलब हज़ारों कॉपियाँ वो बना सके। नेक्स्ट वन इज स्मॉल साइज और लो मॉलिकुलर वेट फॉर इन्हांस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, इजी आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन, ईजिली आइसोलेट किया सके, प्योरीफाई किया सके। एंड इजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल एंड एबिलिटी टू इंटीग्रेट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर प्लाज्मिड, these are autonomously replicating circular extra chromosomal duplex DNA molecule। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बैक्टीरियल सेल के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। PBR322 is the best most commonly used vector and is regarded as the workhouse for gene cloning। तो इसका एक एग्जाम्पल है ई कोलाई में क्लोनिंग वेक्टर PBR322। Next one is tumor inducing plasmid. Agrobacterium tumeficans, a pathogen of several dicot plant, is able to transfer a piece of DNA known as tDNA. The tDNA causes tumor. Tumor formation is induced by Ti plasmid. The Ti plasmid used as a vector as gene transfer occur without human effort.